Good morning, students. So, today we are going to do the first chapter, that is the number system, and we will revise this chapter. As all of you know that the syllabus or pre-midterm syllabus is finished. The 5 chapters are there, and that is chapter number 1, 2, 3, and 6 and 7. So, we will start the revision of chapter number 1, and after the revision, I will take test. When the this chapter will finish, I will give you 1 day extra, and then I will take the test of this chapter. Okay. Now, first of all, what do you mean by natural numbers? All the counting numbers, the numbers that the counting numbers means the numbers which start from 1, that is known as the counting numbers. And the natural numbers are denoted by the capital letter N, that is 1, 2, 3, and so on. All the counting numbers are known as the natural number. Second is whole number, and whole numbers are denoted by capital W. The numbers that start with 0, that is known as the whole numbers. 0, 1, 2, 3, all the counting numbers including 0. Third is integers, and integers are denoted by capital letter Z. All the positive numbers, negative numbers including the 0, that is known as the integers. So -3, -2 dashes means ki there are infinite number of terms here on the negative side. Infinite number of terms are here on the positive side. So -3, -2, -1, so on, 0 plus 1 plus 2, and so on. These are the integers. A rational number, they are denoted by capital letter Q. The numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0. Okay. Now, in the first worksheet, first worksheet, you have to write check whether 0 is a rational number or not. So 0 is a rational number because 0 can be expressed in the form of 0 upon 1, in the form of P upon Q, and where the denominator 1 is not equal to 0, and both 0 and 1, they belongs to integers. Clear? Now the next question था आपका कि write the 6 rational number between the 2 rational number. The rational numbers are 3 and 4. So first of all, 3 can be written in the form of 3 upon 1, and 4 can be written as 4 upon 1. So n is equal to 6. If it is given, you have to find the 6th rational number. First of all, take the 6th rational number as n. Now adding 1, n plus 1, it becomes n plus 1. Now here it becomes 6 plus 1 is 7. So you have to multiply 3 upon 1, multiply and divide by the same number, that is 7. ये जो 7 आ जाएगा इसी से multiply करना है और इसी से divide करना है. It becomes 21 upon 7. 4 multiply by 7 by 7, it becomes 28 by 7. जब आप इसे कट करेंगे ना, 7 3 जा 21 तो 3 आ जाएगा, 7 4 जा 28 तो 4 ही आ जाएगा. हमने इसको 3 और 4 को खुद बनाया है 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7. तो 21 अपॉन 7 को लिख लेंगे, 28 अपॉन 7 को लिख लेंगे. वी हैव टू फाइंड द 6 रैशनल नंबर. तो 6 रैशनल नंबर 21 के आगे काउंटिंग करेंगे. 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 एंड 27 by 7. सिर्फ काउंटिंग ही करनी है और लास्ट जो है वो 28 by 7. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 रैशनल नंबर 3 by 5 एंड 4 by 5. तो 3 by 5 और 4 by 5 ये रैशनल नंबर आपको गिवन है. तो 3 by 5 और इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो n इज इक्वल टू 5. यू हैव टू एड 1, तो इट बिकम्स 5 plus 1 is 6. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6 and 6. इट बिकम्स 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30. तो राइट 18 by 30 and at the last right here 24 by 30. And you have to find the 5 rational number. So in between 18 by 30 and 24 by 30, write the 5 rational number. 19, write the simple counting 18, 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 by 30, 23 by 30, and last is 24 by 30.
Okay, in the fourth question, it is asked that whether the every natural number is a whole number. You have to write the true or false. Every natural number is a whole number. Yes, it is true because every natural number, the natural number, it contains the term 1, 2, so on. 1, 2 infinite numbers are there, and whole number, it contains 0 also. So every natural number is a whole number because whole number contain all the all the counting numbers 1, 2, 3 and so on, but it also contains 0. So every natural number is a whole number. But if the converse come, the every whole number is a natural number, then it is false because the whole number contains 0 and natural number doesn't contain 0. Okay. नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है. तो हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर तो हो नहीं सकता बिकॉज इंटीजर कंटेन्स नेगेटिव नंबर ऑल्सो. Although it contains 0 and positive numbers, so whole number contains 0 and positive number, but the integer contains negative number also, and therefore every integer is not a whole number. थर्ड था एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि हर एक रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर है. तो ये भी क्या है, फॉल्स है, बिकॉज द एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज रैशनल नंबर कंटेन्स अ नेगेटिव टर्म ऑल्सो and the whole number doesn't contain negative term because minus 3 is a rational number because it can be expressed in the form of minus 3 upon 1, or you can say another example minus 2 upon 5. It is a rational number. And 2 and 5, minus 2 and plus 5 both are integers and 5 is not equal to 0. It is a rational number but it is not a whole number. Okay, तो यू हैव टू राइट द ट्रू फॉल्स. और ये जो ट्रू फॉल्स है आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, इसको जरूरी नहीं है कि ये 3 ही पूछे जाएं, इसको उल्टा सीधा करके आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं. नेक्स्ट सम इज ये देखिए, अब क्या है कि नंबर लाइन पे आपको लोकेट करना था √2, √3, √4. तो इसका मेथड क्या था. √2 के लिए ये देखिए √2, √3, √4, ये देखिए सबसे पहले क्या है कि √2 से पहले क्या आता है √1, जो नेचुरल नंबर है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1. तो √1 दैट इज इक्वल टू 1 एंड √1 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर. ठीक है, √2, √3 दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर बट √4 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वेयर एंड √4 इज इक्वल टू 2. √5, √6, √7, √8 these are not perfect square but √9 that is equal to 3 they are the perfect square. ठीक है, तो जब भी आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है, फर्स्ट है आपका √2. तो आपने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, उसमें एक आपने 1 यूनिट लेना है. 1 यूनिट को आप स्केल से अगर मेजर करते हैं तो 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, नहीं तो 1 यूनिट जो है वो आपने लेना है. थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन लेना क्या है, उसको लिखना क्या है, 1 यूनिट. तो ओ पॉइंट जैसे आपका 0 मार्क है और ओ ए डिस्टेंस आपने ले लिया 1 यूनिट. ए पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ए बी जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो 1 यूनिट. ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये हमेशा आपने 1 यूनिट लेना है और ओ और बी को ज्वाइन कर देंगे. ये आपने परपेंडिकुलर अगर बनाया है ए पॉइंट पे तो इट बिकम्स अ राइट एंगल triangle OAB, and in the right angle triangle Pythagoras theorem applies. So Pythagoras theorem is hyposquare is equal to base square plus perpendicular square. Here it becomes OB square is equal to OA square plus AB square. So 1 square plus 1 square it becomes 1 plus 1 is 2 and OB is equal to √2. ठीक है, OB स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, OB इज इक्वल टू √2. तो OB जो है दैट इज इक्वल टू √2. तो अब आपने क्या करना है कि इसको लोकेट करना है ना √2 को ऑन द नंबर लाइन. तो क्या करेंगे, O पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और OB डिस्टेंस जो है वो मेजर करेंगे. ठीक है, इस तरह से आपने कंपास को रखा और यहाँ से ही आपने ये कंपास का जो आपने पॉइंटेड एंड है ना वो ओ पॉइंट पे रखना है ना, और OB डिस्टेंस ले लेना है जितना भी होता है, और कंपास को उठाना नहीं है, यहीं से आपने ऐसे नंबर लाइन के ऊपर आर्क लगा देनी है. तो ये जो सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा ओ से दैट इज √2. ठीक है, फिर उसके बाद है √3. ये दिस वन इज √3. √3 के लिए सबसे पहले √3 बनाने के लिए आपको √2 बनाना पड़ेगा. √2 आपने कर लिया. फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो OB हाइपोटेन्यूज था ना, OB को आपने स्केल
स्केल लेके आपने ओ बी डिस्टेंस लेना है और यहाँ बी पॉइंट पे जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए फिर से जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है और ओ के साथ इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन अब जो बेस है दैट इज इक्वल टू √2 परपेंडिकुलर इज 1, तो ओ सी इज इक्वल टू, ये मेजर करना है तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर √2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 एंड ओ सी इज इक्वल टू √3। ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू √3, ये √3। ठीक है, अब ओ पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है और इस तरह से आपने ओ पॉइंट पे पॉइंटेड एंड रखना है और यहाँ पे कंपास को रखना है और इस तरह से आर्क को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये √3 आ जाएगा। अब √2 के लिए, √3 के लिए जो होरिजेंटल डिस्टेंस है वो आपने 1 यूनिट लिया। क्यों लिया? क्योंकि √2 और √3 जो हैं दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर से जो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है? 1, इसलिए आपने ये डिस्टेंस जो है वो 1 ले लेना है। अब नेक्स्ट आपका √2, √3, √4। √4 क्या होता है? दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, √2 और √3 तो थे इररेशनल नंबर, लेकिन √4 जो है वो क्या है? √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो दैट इज अ रैशनल नंबर। तो हमें तो लोकेट करना है इररेशनल नंबर्स को। तो √2, √3 के बाद √4 नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा? √5। तो √5 के लिए देखिए, जो √2, √3 है ना, उसके लिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस 1 यूनिट लेना था, लेकिन रूट जब 5 आ जाता है तो उससे पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर देखना है, तो वो क्या है? 4 का स्क्वायर रूट लिया, वो हमने कितना आया? 2 यूनिट्स। तो ए डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स लेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस, और ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ए बी डिस्टेंस इज 1 यूनिट। ए बी डिस्टेंस 1 यूनिट आ जाएगा, इसको ओ और बी को ज्वाइन कर देंगे और पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, तो इट बिकम्स 2 स्क्वेयर ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 5 एंड ओ बी इज इक्वल टू √5। ओ पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और ओ बी डिस्टेंस √5 है, यहाँ पे कंपास को पॉइंटेड एंड रखा और यहाँ तक मेजर किया कितना आ रहा है, और इस कंपास को हिलाना नहीं है, फिर यहीं से आपने आर्क लगा देनी है ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसी तरह से आपने √6, √7 कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था नंबर लाइन पे इररेशनल नंबर्स को लोकेट करना तो कैसे करें। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लेंगे, बाकी हम कल करेंगे।